Hello students, welcome to my channel Maths Buzz. Today I'm taking the special exercise about the from class 10th, and this is arithmetic progression chapter 5. And here in this chapter I'm taking CBSE board questions, and now what I am doing is I am now starting with the revision of the questions which have been asked in board. Okay, so here first I'm starting with 1 marker question. We have been given in an AP if the common difference is D is -4 and the 7th term A7. Okay, so this means we are talking about A7. Okay, it means this is for find the first term. So what we will do, we have been given the 7th term, so we should know the formula. So A7, what is the formula for the general term? This is A plus n minus 1 into D. So n is 7, so wherever n is coming, we'll replace it by 7. So here this is A plus, this is 7 minus 1 into D. This becomes A plus 60, and this is 4 because A 7th is 4. Now what else is given? D is -4, that is a common difference is -4. So here wherever D is written, we'll replace it by -4. So 6 into -4. This becomes -4. So here this is 4 is equal to A minus 24. This implies A is equal to 24 plus 4, that is 28. So the first term is 28. So this is our answer. So this is our answer. So I hope this question is clear, and basically in arithmetic progression we have very few formulas that we have to keep it in mind. As far as the AN is concerned, this is the general term, and this formula has to be remembered and used as and when it is needed. Moving to the next question, we have which of the term of the AP is -49. So if you see, how do we write AP? Okay. So I'll just show you. Generally AP is written as A1, A2, and the last term is AN. And this AN is the formula for AN is this. So what is given here? It says which of the terms. So it means हमने क्या निकालना है? We have to find n, number of terms. हमें n निकालना है ना? आपको AN दिया हुआ है. So this is -49. Fine. What is the first term? First term is 5. So A1 is 5. And what is the second term? Second term is 2. We can write third term also, though it is not needed, but for our own satisfaction we can write. Now how do we find common difference? Common difference is the difference of the second term minus first term. So A2 minus A1 is a common difference. So this is 2 minus 5, this is -3. Common difference is -3. So what we will do for D, we'll put -3. A is 5. So here we can replace A by 5. So A is 5 and common difference is -3. So we'll just substitute and we'll solve this equation. So 5 will be shifted to the left side. This becomes minus n minus 1 into -3. Fine. So this becomes, if you simplify, this is -54, and I'll shift -3 also on the left side. So here what is happening कि multiply हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये divide हो जाएगा. ठीक है. So -3. So this is n minus 1. This cancels. So it gives us 18. So n minus 1 is 18. Okay. So n minus 1 is 18 here. We can flip the equation. So this can be written as n minus 1 is equal to 18. Because आपने क्या किया, लेफ्ट साइड को आप राइट साइड को लेफ्ट में ले आए, लेफ्ट को हम राइट में ले आए. तो इक्वेशन में हमने चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ साइड चेंज करी है. तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 18 प्लस 1 दैट इज़ 19. तो दैट इज़ 19 टर्म की जो वैल्यू है ना, आपकी जो 19 टर्म है वो हमारी क्या है, -49 है. 19 टर्म इज़ -49. सपोज आई एम नॉट श्योर कि आंसर सही है कि नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को रख के देख लेंगे, है ना.
आपने निकाल लिया A19 का क्या फॉर्मूला है। वैसे 1 मार्कर में इतना एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है ना, पर जब आप आंसर रिवाइज कर रहे हैं और आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो। A की वैल्यू क्या है यहाँ पे, दैट इज़ A1 हमारा 5 था, तो A1 5 रख लिया है, और जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो -3 था, तो यहाँ पर हमने रख लिया -3। ठीक है, सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका वैल्यू, आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा है, -49। सो इट मीन्स हमारा सोल्यूशन करेक्ट है, एन की वैल्यू क्या है, 19। दैट इज़ जो आपकी जो लास्ट टर्म है वो कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म हमारी क्या है, 19 टर्म है, दिस इज 19 टर्म। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। जो 1 मार्कर के क्वेश्चन है जनरली क्या होता है कि अगर आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है तो हमने सीधा आंसर को मार्क कर देना है, लेकिन कभी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। बट अगर ये क्वेश्चन वैसे 2012 में पूछा गया है, दिस इज़ यू कैन से द प्रीवियस बोर्ड, बट दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्कर ऑल्सो। ये क्वेश्चन हमारा 2 नंबर का भी हो सकता है। चलिए अब इसके बाद हम करेंगे थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज़ थर्ड क्वेश्चन अबाउट? दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड इट हैज़ बीन आस्क्ड अ नंबर ऑफ टाइम्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एंड फ्रेंकली स्पीकिंग ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी में भी है। दिस इज़ योर एनसीईआरटी क्वेश्चन ऑल्सो। ओके, नाउ व्हाट वी विल डू, जैसे आपने √2 है ना, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। फर्स्ट टर्म हमारी √2 है, सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, √8 है, तो √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, है ना। √8 का आपका क्या हुआ, जैसे आपको नहीं समझ आ रहा है तो √8 हमारा हो गया 4 × 2। 4 का जो स्क्वायर रूट है वो 2 हो जाएगा, तो आपका 2√2 हो गया। ऐसे ही √18 क्या हो जाएगा, 3√2, और √32 क्या है, 16 2 ज़ा 32, यानी कि 4√2। तो सबसे जो हमारा होमवर्क हो रहा है वो इन टर्म्स को सिंप्लीफाई करने में यूज़ हो रहा है। सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज़ 3, दिस इज़ 3√2। सो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें टर्म का क्लैरिफिकेशन ही नहीं हुआ तो फिर हम उसमें कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, और कॉमन डिफरेंस नहीं निकला तो नेक्स्ट टर्म कैसे निकालेंगे। तो अब आप ना यहाँ से ऑर्डर लगा सकते हो, √2, 2√2, 3√2, 4√2। मैंने जनरली देखा है बच्चे ना कन्फ्यूज हो जाते हैं जब ये √2 के आगे कुछ नहीं लिखा होता, तो अपने सेटिस्फैक्शन के लिए, अपने क्लैरिफिकेशन के लिए 1 लिख दीजिए। तो आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो हमारी टर्म्स हैं ये ऐसे जा रही हैं, 1√2, 2√2, 3√2, 4√2, और जो हमारी नेक्स्ट टर्म हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, 5√2। इवन अगर और भी टर्म हमें निकालनी है दैट इज 6√2। बट अगर आप कहते हैं कि मैडम हमें आंसर तो इसमें चाहिए अंडर रूट की फॉर्म में, तो 5√2 का क्या मतलब है, 5√2 का मतलब है 5 का स्क्वायर × 2, दैट इज 50। तो यहाँ पे √32 के बाद हमारी जो नेक्स्ट टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, √50। सो दिस हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एंड द स्टूडेंट्स दे रियली फेस प्रॉब्लम व्हेन come across with this kind of question. Okay. So here now in question number 4 we have been given is -150 a term of the AP 11852. So what we will do, we have to find out which term is, if whether -150 is a term of the given AP. A is 11, and how will we find common difference? Common difference we'll take by taking the difference of two consecutive terms. So common difference is -3. And we'll assume let nth term of the given AP is -150, that is an is -150. So what is the formula for an? This is the formula. So wherever an is coming, आपने रख देना है -150, फर्स्ट टर्म की जगह हमने 11 रख दिया, और n-1 कॉमन डिफरेंस इज -3. सो आइडिया हमारा पर्पस क्या है, हमने n निकालना है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n. And whatever value of n comes, we'll say that this particular term is -150, that is 9th term is -150, 17th term is -150. So we'll see what value of n we get. Here we have to find out whether this is a term or not, this is a possible term or not. -11 will shift to the left side, this is n-1 upon -3. सो अभी आपका क्या हो गया, -161, और ये जो -3 है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ये आपका माइनस हो गया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, ये हमारा कैंसिल हो गया। सो दिस इज़ 161 अपॉन 3, और इस 1 को भी अगर हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा प्लस, ठीक है। अब इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ रहा है 164 अपॉन 3. सो दिस इज 164 अपॉन 3, दिस इज n, and this number is not divisible by this thing by 3 completely.
तो हमारा जो n का जो वैल्यू आ रहा है वो फ्रैक्शन में आ रहा है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज जो हमारी टर्म्स हैं वो हमारी क्या होती है, नेचुरल नंबर होती है, कंप्लीट नंबर्स होते हैं। फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, ऐसा तो होता नहीं है कि आपके कोई 1.5 टर्म है बीच में। तो ये जो -150 टर्म है, दिस टर्म इज़ नॉट पॉसिबल. It means there is no term which is coming in this EP. Okay, so I hope you have understood this question. It's a good question. This question is also in NCERT, and this question has been asked in CBSE. This is 2016. Okay. So in my next video I'll take the question which is for the this year board 2019 and 2018 के जो बोर्ड में पूछे गए हैं, तो मैं उस अपनी जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें I'll take those questions. We have the last question, for what value of k will the consecutive terms they form an AP. तो अभी आपका क्या है, ये हमारी consecutive terms है ना, तो इसको हमने अगर सपोज मान लेते हैं ये आपकी कोई फर्स्ट टर्म है, ये हमारी सेकंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है ना, कोई भी consecutive टर्म है, तो हम ये टर्म्स ले लेते हैं। तो इसमें क्या है कि आपका जो डिफरेंस है, दो टर्म्स का जो डिफरेंस है, यानी सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म क्या होगा, सेम होगा। तो दिस कैन बी रिटन एज सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई फिर करेंगे तो सेकंड टर्म को हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया और जो A1 है ना, जो फर्स्ट टर्म है उसको अब राइट साइड में शिफ्ट कर दो। तो ये क्या हो गया, 2 टाइम्स द सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टाइम द सम ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। तो ये बात ना आपको याद रखनी चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हमारी 3 टर्म्स हैं, है ना, AP में है ये सीरीज, तो जो मिडल टर्म है उसको डबल कर देंगे और वो इक्वल होगा एक्सट्रीम टर्म के सम के, मतलब जो हमारी एक्सट्रीम टर्म्स हैं A1 और A3 उन दोनों के सम के बराबर होगा। तो अब इस वैल्यू को आप यहाँ रख सकते हैं। आपकी जो सेकंड टर्म है वो क्या है, वो है हमारी 3k, फर्स्ट टर्म हमारी है 2k प्लस 1 एंड थर्ड टर्म है 5k माइनस 1। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, ये कैंसिल हो गया। दिस इज 6k इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि थर्ड टर्म आपकी 3k प्लस 3 है, ठीक है, ये वैल्यू रखने में हमसे गड़बड़ हो गई है। सो यहाँ पे थोड़ा सा, बिकॉज ने 3k प्लस 3 यहाँ लिखा हुआ था, तो आपकी जो हमारी जो सेकेंड टर्म है वो 3k प्लस 3 है, इसको पूरा रखेंगे, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट और थर्ड टर्म है ये 1 कैंसिल हो गया। सो दिस इज 7k एंड दिस इज 6k प्लस दिस इज 6, ठीक है। अब ये जो 6k है इसको हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड में ले जाओ, या तो आप ऐसे करिए, वेरिएबल को हम क्या करेंगे, लेफ्ट में रख लेंगे, कांस्टेंट को राइट साइड में। 6k माइनस 7k इज इक्वल टू, इस 6 को हमने ले जाना है राइट साइड में, ये हो गया -6। तो -k इज इक्वल टू -6, k की वैल्यू हमारी 6 आ गई, यानी कि k की वैल्यू आपकी क्या है, 6। सो दिस इज आवर आंसर। So I hope this question you have understood, because this is also the question of its own kind. So these are the questions. From now onwards I'll be taking questions from all the chapters which have been asked from the board point of view. So stay tuned to my channel for further questions and their solutions. Till then, keep learning, keep watching. Thank you and have a good day.